آج کل کیا ہوتا ہے، بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل کاروبار میں یہ پرابلم، جتنے لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کو دیکھیے یہ والی آیت ان کو پڑھنی چاہیے اور ان کو سمجھ آنی چاہیے۔ اور دنیا بہت خوبصورت ہے، آپ پتہ ہے دین میں تو یہ ہے، دنیا گھر سے نکلے کام کیا کریں تھوڑی دیر کے لیے نا، جس شیشے کے آگے کھڑے ہو کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت علی کے اتنے خوبصورت اقوال شیئر کرنے والی ہوں جو کہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اکثر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں کیسے یہ پتہ چلے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے کون محبت کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے کہ جو شخص تمہیں خوشی کے وقت یاد آتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور جو شخص تمہیں غمی میں یاد آتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جتنا کہ ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہاری محبت، فکر، چاہت اور عزت ہو۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے وہ روح کو اور نکھار دیتی ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا ایک بہت پیاری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 2770، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کے بارے میں فرمایا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنی ماں کے لیے صدقہ دوں تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا وہ باغ جو میووں سے بھرا ہوا ہے وہ میں اپنی ماں کے نام صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اولاد تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا۔ اب سوچے کہ مرنے کے بعد تو عمل بند ہو جاتے ہیں اور اس وقت غائب کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت اگر ہمیں کوئی اتنا پیارا تحفہ بھیجے جس کا اجر اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے تو کیا حال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ اب جب بھی گھر سے نکلے کام کیا کریں تھوڑی دیر کے لیے نا، جس شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے سوال پوچھا کریں کہ میں باہر نکل رہی ہوں تو میرے رب کو میرا اس طرح سے باہر جانا پسند ہوگا؟ بس اتنا سا سوال کر کے پھر نکلا کریں۔ تھوڑے ہی دن میں آپ کو بہت کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم میں رکھے، اپنی رحمتوں میں رکھے، کیونکہ شیطان نے ہمیں بڑا بہکایا ہوا ہے۔ آنیسٹلی ہمیں اتنی تسلیاں کچھ نہیں ہونا، کیونکہ ہمیں لمحوں کا ہی نہیں پتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی اگر کر رہی ہوں تو میں اس کا جواب کیسے دوں۔ اور دنیا بہت خوبصورت ہے، آپ پتہ ہے دین میں تو یہ ہے، دنیا چھوڑنے کا تو کہیں بھی نہیں ہے نا۔ تو صرف یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہی تو عمل کا میدان ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی ہم ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں ہائی اتنا فتنہ اتنا یہ، تو آپ یہ سوچا کریں کہ یا پاک پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا۔ اگر میں نے یہ برائی کو روکنے کی کوشش کی تو تب بھی اجر پا جاؤں گی، اگر میں نے اس کو دل میں ہی برا کہہ دیا، نہ روک سکی، دل میں برا کیا، تب بھی اجر پا جاؤں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا آسان وہ بھی کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور انہی کی وجہ سے ہمیں بتایا کہ تمہیں دروغہ نہیں بنایا، تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ تو وہ تو بہت آسان بات ہے، اور اتنا اجر جس کی کوئی حد۔ آج کل کیا ہوتا ہے، بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل کاروبار میں یہ پرابلم، جتنے لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کو دیکھیے یہ والی آیت ان کو پڑھنی چاہیے اور ان کو سمجھ آنی چاہیے اس بات کی کہ استغفار کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، وعدہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو کیا ہوگا کہ وَيُمْدِدْكُمْ، وہ مدد کرے گا تمہاری بھی اموال، مال کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سفر میں جاتے ہیں تو راستے میں ایک مسجد میں رکتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے کہ کوئی رات ادھر قیام کرتا ہے، تو راستے میں اگر رکنا ہوتا تھا تو یوزلی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مسجدوں میں بھی قیام کر لیتے تھے، پھر صبح اگلے سفر پہ نکل جاتے تھے۔
तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि रास्ते में मुझे रुकना हुआ, देखा तो बहुत रात थी। तो उस शहर में मैं जहाँ पे मैं था तो मैंने सोचा कि चलो मैं रात यहाँ पे क़याम कर लेता हूँ। तो कहते हैं मैं वहाँ पे जो निगरान था वहाँ का मस्जिद का, तो मैंने उसको कहा कि मैं रात को यहाँ पे रुक जाता हूँ, सुबह मैं निकल जाऊँगा। तो उसने कहा, क्योंकि उस जमाने में कोई मीडिया तो था नहीं, किसी को पता तो था नहीं कि कौन कौन है, तो उसको भी नहीं पता था कि इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई रुकना नहीं होता, चलो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, मुझे इसको बंद करना है मस्जिद को, तो तुम जाओ यहाँ से। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं अपना सामान लेके और अपनी बुक्स लेके मैंने सोचा कि चलो मस्जिद के दरवाजे पे बैठूंगा, सुबह तक बैठूंगा, जो मैंने पढ़ना है मैं पढ़ के सुबह मैं निकल जाऊंगा। तो कहते हैं जैसे मैं बाहर बैठा तो एक नान भाई, जैसे नान लगाने वाले होते हैं ना जिनके तंदूर होते हैं, ये एक नान भाई था, तो वो वहां से, खब्बास कहते हैं उनको, तो वो वहां से गुजरे। तो उन्होंने देखा जब इनको, तो उन्होंने कहा कोई मुसाफिर है, तो उन्होंने कहा कि तुम मुसाफिर हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं पूरी रात वैसे भी काम करना है, तो तुम वहां सो जाना, सुबह तुम निकल जाना। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं उसके साथ चला गया। अब मैं लेटा हुआ था, मैंने क्या देखा कि उसने आटा निकाला गूंदने के लिए, और साथ वो इस्तिगफार करता जाए, इस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा था। तो कहते हैं मैंने जब उसको देखा तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी इस्तगफार कर रहे हो तो क्या तुम इसका कोई फायदा भी हुआ है? तो उसने कहा, उस शख्स ने कहा कि मैं तो एक गरीब सा आदमी था, जब से मैंने ये इस्तगफार करना शुरू किया है मैं तो बड़ा मालदार हो गया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी एक अजीब सी बात है कि मैं जो भी दुआ करता हूँ मेरी कबूल हो जाती है। सिवाय एक दो दिन से मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मैंने सुना है कि एक इमाम है जो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, जो बड़े आलिम हैं, मेरा बड़ा दिल है कि मैं उनसे मिलूं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दरख्वास्त की है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे उनसे मिला देना। अहमद बिन हम्बल इतने हैरान हुए और उन्होंने कहा कि सुभान अल्लाह कि वो मैं ही हूँ। और सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे यूं लग रहा था कि फरिश्ते मुझे धकेल के तुम्हारी तरफ लेके आ रहे हैं, कि इस तरह से था कि मुझे जबरदस्ती मुझे जाना ही है। तो देखिए इस्तिगफार करने के कितने बड़े फायदे हैं। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए कहते हैं कि वो जो इस्तिगफार करते हैं कि व बनीना, कि व युमदिदकुम, और वो मदद करेगा तुम्हारी बि अम्वालिन, माल के साथ, व बनीना, और बेटों के साथ। यहाँ पे भी मैं आपको एक और वाक्य सुना देती हूँ कि अबू यूसुफ का वाक्य आता है, हिजाज के रहने वाले थे। कहते हैं कि एक दफा मैं जा रहा था गाड़ी में, और गाड़ी में मैंने रेडियो ऑन किया तो कोई इस्लामिक प्रोग्राम था, उसमें कोई आलिम दीन थे, वो बता रहे थे इस्तिगफार की फजीलत बता रहे थे। तो उन्होंने यही वाली आयत जो मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ, यही वाली आयत पढ़ी और उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बेटे भी अता करेंगे। तो कहते हैं मैंने एकदम से सोचा कि मैं तो ये भूल चुका हुआ था। इंसान को याद नहीं रहता ना कि अल्लाह का जब वादा है कि अल्लाह बेटे देगा इस्तिगफार से। तो कहते हैं मैंने वहां से गाड़ी को वापस मोड़ा और मैं घर गया, और मैं और मेरी बीवी ने उस दिन से इस्तिगफार को अपना कलाम बना लिया। और उसके बाद कहते हैं कि एक दो साल के बाद कहते हैं मैं वापस उस डॉक्टर के पास उसको मिलने के लिए गया। अब मैंने उनको जाके कहा कि मेरी आपके साथ अपॉइंटमेंट थी, मैं आपको मिलने नहीं आया था। उनके जानने वाले थे डॉक्टर ना, उनको पता था असल में जा रहे थे रास्ते में क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। किसी ने उनको ये बताया था कि फला डॉक्टर है, उसके पास जाओ, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें शिफा भी रखी है, वो ऐसी दवाई देता है और उसका इलाज भी है, तो तुम जाके उसके पास इलाज करवा लो, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद नवाजेंगे। तो कहते फिर दोबारा मैं उसके पास जब गया और मैंने उनको बताया कि मेरी आपके साथ अपॉइंटमेंट थी, मैं उस दिन नहीं आया था, आज मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बेटे अता कर दिए, बेटा अता किया, मुझे औलाद की नेमत से नवाजा है। और मैं आपको यही बताने आया हूँ कि मैंने अल्लाह की दुआ इस्तेमाल की है, और वो दुआई क्या थी? इस्तगफार करना शुरू कर दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे। तो देखिए फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वयजअल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बागात बना देगा, जन्नातिन, बागात बना देगा। अब देखिए कि हमारा इस्लाम तो सबके लिए है ना। अब देखिए कि वो लोग जो बेचारे गरीब हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हमारा वैसे भी रोना ये होता है, इमरान खान ने तो वैसे ही इतनी महंगाई कर दी है कि आम बंदा भी फल नहीं खा सकता, हम गरीबों की क्या बात करें। तो आम बंदा भी जब फल लेने जाता है तो तकलीफ होती है कि इतना महंगा फल हो गया। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि एक फल नहीं, इतना 1 किलो नहीं, मैं तुम्हें बागात अता कर दूंगा। और इसके अलावा क्या करेगा? वयजअल लकुम अनहारा,
اور اللہ सुब्हान ताला तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। अल्लाह अकबर। देखिए मक्का के लोगों के लिए उस वक्त पानी की इतनी किल्लत होती थी, ये बड़ी बात होती थी। जिनके बागात होते थे, बागात बेसिकली बड़ी अमीर लोग जैसे हैं उसकी बात होती है, या फिर इज्जत की और मालो इज्जत की जैसे बात होती है कि उनके बागात है, उनके और उनकी नहरें। हजरत उस्मान का याद है ना, उन्होंने कुआं खरीद के मुसलमानों को दे दिया था क्योंकि बड़ी मुश्किल थी, पानी नहीं मिलता था और पानी खरीदना पड़ता था। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि वो अल्लाह सुब्हान ताला नहरें जारी कर देंगे, अल्लाह सुब्हान ताला अपने करम तुम पे नाजिल कर देंगे। मालकुम, क्या हो गया है तुम्हें। देखिए हैरत से अल्लाह सुब्हान ताला जैसे कहते हैं ना कि क्या हो गया तुम्हें, ला तर्जुना, कि नहीं तुम रजू करते, लिल्लाही, अल्लाह की तरफ, वकारा, कि क्या तुम्हें अल्लाह सुब्हान ताला की अजमत पे यकीन नहीं है। क्या तुम्हें ये लगता है कि अल्लाह के खजानों में कमी आ जाएगी कोई? तुम्हें ये लगता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे नहीं कर सकता? तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें सब कुछ अता कर देंगे। कितनी खूबसूरत बात है। अब आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कि जरूर। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मैं दिन में 70 बार, और एक जगह पे आता है 100 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो हमारे लिए कितना जरूरी होगा किसी भी चीज के लिए। अगर बच्चे, अक्सर लोग ये कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह सुब्हान ताला हमें औलाद की नेमत दे। आप हमारे लिए दुआ करें, कारोबार में आजकल बड़ी मुश्किल हो रही है। आप हमारे लिए दुआ करें, बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा, आप दुआ करें इसके लिए। आप देखिए ये एक चीज में अल्लाह सुब्हान ताला ने सारी चीजें बता दी कि इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह सुब्हान ताला सारी नेमतें आपके ऊपर नाजिल कर देंगे, आसमान से रहमतों की बारिशें नाजिल कर देंगे। सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत आयात आ रही हैं कि मुझे पूरा हफ्ता मैं ये सोचती रही कि मैं इनसे जस्टिस कैसे कर सकूंगी। ये इतना प्यारा अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम है, और आज भी ये ऑनेस्टली ये आयात की तफसीर करते हुए मेरा दिल जो है ना वो अभी भी घबरा रहा है, और उसकी साउंड ऐसे है कि मेरी बोलना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। कि अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करके मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ कि या अल्लाह जो तू चाहता है मेरी जुबान से बस वही लफ्ज निकालना। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम को खत्म किया था वो था कि वल्लाहु बिमा तामलूना बस अलीम, कि अल्लाह सुब्हान ताला जो कुछ तुम करते हो उसको जानता है। अल्लाह सुब्हान ताला बार बार अपना तारुफ करवाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा अमल क्या है। तुम डरो नहीं, तुम बस नेकी की तरफ भागने वाले बन जाओ। तुम्हारे दिलों के अंदर जो है मैं वो भी जानता हूँ, जो तुम जाहिर करते हो मैं जानता हूँ, जो तुम छुपाते हो मैं वो भी जानता हूँ। आखिर हूँ मैं तुम्हारा अल्लाह ना। तो आगे अब देखिए कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसका एक एक लफ्ज हमारे अमल में ढल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। कि लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, मा जो फिस समावात आसमानों में है, व मा फिल अर्द और जो कुछ जमीनों में है। सबसे पहले तो आप जरा गौर ये बात पे कीजिए कि आसमान और जमीन के दरमियान में क्या क्या चीजें हैं। सारी की सारी कायनात अल्लाह सुब्हान ताला के लिए खानतीन है। आप कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि इंसान जमीन और आसमान के दरमियान में जितनी मखलूक है वो सब अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, तौअन व करहन, वो अपनी दिल की खुशी से या वो जबरदस्ती है। एक तू ही इंसान है जो आप थोड़ा सा डगमगाता रहता है इधर उधर। और देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी क्लियरली यहाँ पे जो आयात में बता रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए जो चरिंद परिंद जमीन आसमान के दरमियान में समंदर देखिए, उसमें हवाएं देखें, उसमें सूरज चांद सितारे गैलेक्सीज, अब यू नेम इट, और सारे के सारे जो है वो अल्लाह ही के लिए हैं। अब अल्लाह कौन है? एक लफ्ज आप याद रखिए कि जहां पे अल्लाह की बात आती है ये अल्लाह का नाम आता है। आप अगर उसके ऊपर आप ये लिख देना कि खालिक, मालिक, मुदब्बिर, ये तीन लफ्ज अगर आप लिख लेंगे तो आपको अल्लाह की पहचान में बहुत आसानी हो जाएगी कि वो जो खालिक जिसने मुझे पैदा किया है ना वही मेरा मालिक है, और जिसने मुझे पैदा किया वो मेरा मालिक है तो वो मेरा मुदब्बिर भी है। उसने मेरी तदबीर भी वही करता है, मेरी तकदीर का मालिक भी वही है। उसने ऐसे ही नहीं कि मुझे पैदा किया और फिर दुनिया में छोड़ दिया। उसके बाद अपने आपको याद है आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कि जब अल्लाह सुब्हान ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा था तो क्या कहा था कि रहनुमाई मेरी तरफ से आएगी और जो उसकी पैरवी करेगा वो कामयाब हो जाएगा। और आप देखिए पूरी सूरत बकरा के खत्म होने तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने अहकामात हैं, जिंदगी का कौन सा पहलू ऐसा है जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा होगा।
हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो शुरू में हमने पढ़ा था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत है मुत्तकीन के लिए, और फिर सारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक चीज हम पे वाज़ेह कर दी। आप देखिए कि अगर घर की बात है, अगर शादी ब्याह का मामला है, तलाक का मामला आता है, रज़ात का मामला आता है, बच्चा पैदा करने का, एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का, फिर उसके बाद अगर रोजों की बात हो रही है, हज की बात हो रही है, नमाज की बात हो रही है, कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि आपने नहीं सुना होगा? पूरा आप अब थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश कीजिए कि किस तरह से एक सूरत, जब मैंने ये सूरत स्टार्ट की थी तो मैं कहती थी इतनी लंबी ये सूरत है, हम कब इसको खत्म करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जो हमारा मुदब्बिर है, वो क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया और आसमान की तमाम चीजें जो है वो लिल्लाहि मा फिस समावात, अल्लाह ही के लिए है। और उस आसमान और जमीन के दरमियान में मैं नहीं आती हूँ क्या? आप नहीं आते हैं क्या? हम सारे इंसान और जिन्नात भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत है, और जो हमारा मालिक है। आप सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आपका घर है, घर के बाहर आप ही के शहर की कोई एक औरत खड़ी होकर कहती है कि ये मेरा घर है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये मेरा घर है। बच्चों के बारे में आप देखिए, कभी कोई ऐसा कहे, कभी आपको कोई कह सकता है ये मेरा बच्चा, आपको कहे नहीं ये मेरा बच्चा है। आपका छोटा गोद में पहले दिन का बच्चा भी अगर डॉक्टर ने जिसने डिलीवर किया वो कहे कि ये बच्चा आपका नहीं है, ये मेरा, तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये मेरा बच्चा है, मुझे पता है ये मेरा बच्चा है। और फिर आप देखिए कि अगर खामन के बारे में भी आप लड़ने बनने को तैयार हो जाए, नहीं ये मेरा खामन है, कि किस तरह से हमें अपनी जो हमारी मलकियत होती है हम कितनी जोर से उसको ऑन करते हैं कि नो ये मेरी चीज है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल वही बात है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ भी है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत है। तुम किधर भागे जा रहे हो? उसी का सारा कुछ है, उसी ने आखिरत में पूछना है। देखिए इस दुनिया में जो भी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है वो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने अचानक कोई चीज दे दी और फिर कहा कि ओके आखिरत में आओगे और तुम परेशान हो कि या अल्लाह ये क्या, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये मामला होना है। इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक चीज खोल के बयान कर दी। सूरत फुरकान की आयत नंबर 20 पढ़ के देखिएगा, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम में से हर एक वजअलना, अल्लाह ताला ने अपने साथ उसको जोड़ा है कि हमने पैदा किया, बादहुम लिबादुन, तुम में से बाज को एक दूसरे को फितना पैदा बनाया है एक दूसरे के लिए। वजअलना बादहुम लिबादिन फितना, कि हमने एक दूसरे के लिए तुम्हें फितना, फितना क्या होता है? आजमाइश है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं अतस्बुरून, क्या तुम सबर करोगे? और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं जानता हूं जो तुम अमल करते हो, मैं देख रहा हूं सारा कुछ। आप वो आयत पढ़ के देखिए, अगर वही आयत को आपको समझ आ जाए, क्योंकि कुरान की सबसे खूबसूरत तफसीर यही होती है कि जब आप कुरान ही से उसकी तफसीर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं व इन तुबदू, और अगर तुम सब जाहिर कर दो, मा जो फी अनफुसिकुम, तुम्हारे दिलों में है, औ तुख्फूहु, या तुम उसको छुपा लेते हो, युहासिबकुम, तो वो हिसाब लेगा, कुम किसका? तुम्हारा, बिही इसका, अल्लाह। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कुछ तुम्हारे दिलों के अंदर है और जो तुम उसको छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज का हिसाब लेंगे। कितनी डरने वाली बात है। अगर हमें इस एक आयत की समझ आ जाए ना ऑनेस्टली, तो हमारे, मैं कहती हूँ, अगला सांस निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दिलों के अंदर तो कई दफा ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ओके ये वाली चीजें, बिल्कुल मैं सहाबा की एग्जांपल देती हूँ कि जब ये आयत नाजिल हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था कि वो भागे गए, वो कांप उठे और वो भागे गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्होंने जाके कहा कि देखिए जो आयात उतरती हैं, जो अहकामात अल्लाह सुब्हानहू तआला के उतरते हैं, जैसे नमाज है, रोजा, हज, ज़कात के बारे में, हम अपनी जितनी भी कोशिश है उसके मुताबिक हम वो भी पूरा करते हैं, नेकी की तरफ भी भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों में जो कुछ ऐसी बात आ जाती है जिसका इख्तियार हमारे पास नहीं है, हम क्या करेंगे? उसका हिसाब हम कैसे देंगे?
تو नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क्या तुम वैसे लोग बनना चाहते हो कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आता था, आपको याद है अहले किताब के बारे में हमने पढ़ा था कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा था कि तुम इस शहर के अंदर से गुजरना और तुम हित्ततुन कहते हुए गुजरना, और उन्होंने कहा था सबेरा हमने सुना हुआ असैन और हमने मानना कोई नहीं है, तो क्या तुम वैसे बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म पे कहो समेना व आताना, कि हमने सुना और हमने अमल कर दिया। तो जब उन्होंने ये कहना शुरू किया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, इंशाअल्लाह अगली जो आयत आएगी मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, कि अल्लाह किसी नफ्स से उसकी वुसअत से बढ़ के हिसाब नहीं लेगा। इतनी खूबसूरत बात कि देखिए दिलों के अंदर एक वो वसवसा होता है। देखिए दिल के अंदर क्या है, हमारा ईमान किधर होता है, हमारे दिल के अंदर की हालत है ना। जितना हमारा ईमान पुख्ता होगा उतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिलेशन पुख्ता होंगे, उतनी अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा होती है। और वहीं पे वसवसा भी शैतान किधर हमला करेगा, जहाँ पे खजाने जमा है उधर ही तो शैतान आता है हमला करने के लिए, फिर वसवसा भी वहीं डालता है। तो ऐसे ख्यालात जिन पे हमारा बस नहीं है ना, उस पे हमारी पकड़ नहीं होगी। लेकिन वो ख्यालात जिनको हम पालते हैं अपने अंदर, जब हमें किसी पे गुस्सा आता है हम वो ख्यालात अपने दिमाग में लाते हैं, फिर हम दिल से उसको गुस्से में बैठे होते हैं, फिर हम पूरा प्लान करते हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट टाइम जब मैं उसके सामने जाऊंगी तो मैं उसको सबक सिखाऊंगी, मैं उसको ये कहूंगी। ऐसा होता है ना। या फिर हम पूरे वो ख्यालात और अपने दिल में रख के वो जो प्लान करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखिए जब तुम अमल करते हो तो ये जो हमारे कातिबीन बैठे हुए हैं ना, ये उसके लिखते हैं, क्योंकि वो जब अमल में आती है कोई चीज तो वो तभी लिख सकते हैं। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जो हाल है, तुम्हारे दिल के अंदर की बात सिर्फ वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानता है। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे पर्दे ही डाले रखे। जैसे इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी ऐसी चीजें होती हैं, आप बिलीव करें कि कभी हम सोचते हैं कि या अल्लाह अगर ये बात लोगों को पता लग जाए जो मेरे अंदर है तो लोग तो हमें मेरा ख्याल है सलाम करना भी छोड़ दें। लेकिन ये अल्लाह की रहमत ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पे पर्दे डाले रखता है और लोग हमें इतना नेक समझते हैं या हमें इतना अच्छा समझते हैं। या बाज दफा ये होता है कि पार्टीज में बाज लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बबली किस्म के होते हैं, हर एक से बात कर रहे हैं, बड़े खुशी से इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। लोगों को नहीं पता होता उनके दिल का हाल क्या है, वो उसके बारे में क्या समझता है, क्या जानता है। जब हम किसी को मिलते हैं तो हम एकदम से जैसे कहते हैं, ओह माय गॉड यू आर लुकिंग सो नाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ये है वो है। और कई दफा वो इंसान इतना अच्छा नहीं भी लग रहा होता, लेकिन वो हाल कौन जानता है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। अब फिर दुआ ये करनी चाहिए। इस आयत से मुझे तो ये डर लगता है कि या अल्लाह हमें मुनाफिकीन में ना रखना, कि हमारे दिल के अंदर कुछ और हमारे जाहिरी में कुछ और हो जाए। या रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीजों से बचा के रखना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई चीज छुपा के नहीं रखी है, सब कुछ बयान कर दिया कि आखिरत में क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी मेरा बंदा कोई ऐसा अमल इरादा करे तो अगर वो बुराई का इरादा करे तो उसको ना लिखो, जब तक वो अमल कर ले। जब वो कर लेगा तो उसकी एक बुराई लिखो, और अगर वो कोई अच्छाई का इरादा करता है तो उसकी एक अच्छाई लिख लो। और अगर वो जो इरादा किया था उसको वो अमल में ढाल देता है तो उसकी 10 नेकियां लिखे। देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे ज्यादा और क्या मोहब्बत करेंगे हमसे। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब मेरा बंदा बुराई का इरादा करता है तो फरिश्ते जनाब अल्लाह सुब्हानहू तआला से अर्ज करते हैं कि अल्लाह तेरा बंदा बुराई करना चाहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं रुके रहो। और जब वो इरादा तर्क कर देता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसकी एक अच्छाई लिख दो, इसकी एक नेकी लिख दो, क्योंकि इसने मेरे डर से इस बुराई का इरादा तर्क कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे मामले इतने खूबसूरत करते हैं। अब हम भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इस रास्ते की समझ अता कर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिससे वो मोहब्बत करता है, जिस पे वो अपनी रहमत करना चाहता है, उसको वो दीन की समझ अता कर देते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। आगे देखिए, आगे क्या है कि अनफुसकुम और तो युहासिबकुम, के अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारा हिसाब लेगा। फयगफिरु, बस वो माफ कर देगा, लिमन यशा, जिसको वो चाहेगा, व युअज़िबु, और वो अजाब देगा, मन यशा, जिसको चाहेगा। देखिए कितनी डर वाली बात है कि वो चाहेगा, वो जो हमारे दिलों में ख्याल हैं जिसको अभी हमने अमल भी नहीं पहनाया था, हमने ऐसे ही सोचा था कि हम किसी के बारे में कोई गलत बात सोच रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे क्या कह दिया कि वो
چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا، اگر وہ چاہے گا تو وہ اس کا بھی عذاب دے گا۔ کہ ہم کتنے بندے ہوئے، ہم کدھر آزاد ہیں؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں پوری مخلوق جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، ایک انسان اور ایک جنات ہے، دو مخلوق ایسی ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری آزادی دی ہے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اور ہم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے درمیان میں کہتے ہیں کہ دیکھا تم کہتے تھے کہ تم ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہو، دیکھو میرا بندہ کیسے میری عبادت کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو عذاب کا یہ معاملہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ حساب لینا اور عذاب دینا بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو حساب لے کے بھی معاف کر دے، اور چاہے تو جس کو عذاب دے گا وہ تو عذاب تو ڈیفینیٹ چیز ہو جاتی ہے نا، کہ ایک جو پرچہ تھا اس کا رزلٹ سامنے آ گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دوزخ میں بھیج دیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنتوں میں جانے والے ہوں۔ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اور بس کوشش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوشش ہی دیکھنی ہے نا، ہمارا رزلٹ کیا آتا ہے اس کوشش میں، ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ دیکھیں دل کے معاملے بھی ہے نا، کہ دل سے ہم نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دے رہا ہے۔ آپ نے دل میں سوچا اس پہ بھی نیکی مل گئی، ابھی کیا بھی نہیں ہے، اور برائی کا ارادہ اگر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار کرواتے ہیں کہ انتظار کرو میرا بندہ شاید اس چیز سے رک جائے، اور جب وہ رک جاتا ہے تو پھر نیکی مل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ گئی۔ دہائی کیا ہے کہ ایک نیکی کی جگہ پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملنا، اور واقعی میں برباد ہی ہو گیا نا، جس کی اکائی جس کی ایک برائی تھی وہ بھی اس کی نیکیوں سے اگر بڑھ گئی تو پھر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کریں آیت نمبر 284۔ الحمدللہ اتنی خوبصورت آیات ہیں، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم آگے جو اس کے ساتھ آیات پڑھ رہے تھے اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو صفات اس کے آگے لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ عدل نہ کرنا اس دن، کیونکہ اگر اللہ نے عدل کر دیا تو پھر تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میری رحمت میری غضب پر حاوی ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس دنیا میں اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، 99% اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ آخرت میں ہوگی۔ اور اللہ نے خود کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے ہمیں جو کہہ دیا تو بس اتنا ہی بتا دیا کہ یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ بار بار میں یہ چیز جو ریپیٹ کرتی ہوں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یا اللہ جتنا میں بول رہی ہوں اتنا مجھے بھی سمجھ آ جائے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ آمن الرسول، کہ ایمان لایا رسول۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہے وہ یقین کی وہ حالت ہوتی ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایمان کدھر ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے نا۔ جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنا ہمارا عمل بھی ظاہر ہوگا۔ اب دیکھیے ایمان کا بیج اگر ہمارے دل کے اندر ہو اور ہمارے عمل میں نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اب جب آپ بیج کوئی بوئیں گے تو وہ نکلتا ہے نا، پھر وہ نظر آتا ہے کہ یہ بیج بویا تھا، اس میں سے یہ پھل نکل رہا ہے، یہ درخت نکلا، یہ پودا نکلا، یہ پھل نکلا، جو بھی نکلا تو ظاہر ہوگا نا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ بعض دفعہ آپ نے بڑی کامنلی یہ بات سنی ہوگی کہ میرے دل میں ایمان ہے، میرا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے، میرا دل میں مجھے پتا، میرا پردہ میرے دل کے سب سے خوبصورت جو میں بہت کامن بات سنتی ہوں، کہتی کہ پردہ جو ہوتا ہے نا وہ دل کا پردہ ہوتا ہے، وہ نظر کا پردہ ہوتا ہے۔ اتنے خوبصورت لفظ ہم لوگوں نے کریٹ کر لیے، شیطان نے ہمیں اتنا بہکا دیا ہوا ان چیزوں کے لیے کہ ہم ان پہ یقین بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں، دل کا پردہ ہے، آنکھ کا پردہ، آف کورس ہمارے دلوں کا بھی پردے آنکھ کے جو اللہ کے حکم
हमें उन पे पर्दे तो ना डाले ना। तो फिर आमन रसूल कि ईमान ले आया रसूल बिमा उनजिला, उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, अलैहि उसकी तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल हुआ था? कुरान पाक नाजिल हुआ था ना। कुरान पे ईमान लाना क्या है कि समेना व अताना। इसमें बहुत दफा ये वाली बात आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहकामात जिस तरह जिस वक्त अता किए, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे थे, और वो एक ही बात होती थी कि समेना व अताना, हमने सुना और हमने अमल कर लिया। क्योंकि यकीन होता है कि मेरा रब जो है, जो मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, मेरा मुदब्बिर है, वो मेरे लिए गलत कैसे कर सकता है? वो तो मेरे लिए भलाई की बात ही करेगा ना। तो सेकंड थॉट भी देने की जरूरत नहीं है। मिन रब्बिही, उसकी रब की तरफ से। अब देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसी कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिर हमें हुक्म क्या दिया। आज से पहले जब हम कुरान नहीं समझते थे, हम कुरान तो पढ़ते थे ना, हम में से सभी कुरान पढ़ते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो फर्स्ट टाइम तफसीर के साथ सुन रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात कहूंगी, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि ओ माय गॉड, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो ये बात भी ऐसे कही है, ये बात भी ऐसे की। जब हम अपनी नजर से वो आयत देख लेते हैं, हम सुन लेते हैं उसके बारे में, तो हमारा यकीन और पुख्ता हो जाता है। फिर जब हमारा यकीन पुख्ता होता है तो फिर आमना की वाली बात हो जाती है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जो ईमान का बीज हमारे दिल में बोया गया है, जिसको हमने अंदर अपने पाला है ना, इसको हमारे जवारे जो है ना, जो हमारा पूरा अमल जो है उसमें डाल दे कि देखने वाले को भी हम ऐसा लगे कि ये अल्लाह वाले हैं। देखिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है जब अगर आपको कोई देख के दूर से पहचान ले कि ये अल्लाह वाला है। मुझे याद है कि एक दफा एक छोटी सी बच्ची से मेरी बात हो रही थी, छोटी बच्ची मीन्स कॉलेज गोइंग बच्ची थी, मेरी उससे बात हो रही थी, हिजाब के बारे में बात हो रही थी। तो मुझे इतनी खूबसूरत उसकी बात लगी। उसने कहा कि आयशा आंटी, मैं जब हिजाब लेती हूँ तो मुझे यूं लगता है कि मैं चलता फिरता दावा हूँ। मैं तो जुबान से भी कुछ नहीं कहती ना, मैं तो सिर्फ चल के एक सड़क पे जा रही हूँ, मार्केट में जा रही हूँ, स्कूल में जा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ या बुक्स ले रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ ना, मुझे देख के लोगों को पता चलता है कि ये अल्लाह वाला बंदा है। मेरे पास क्रिश्चियंस है, यहूदी है, जो भी पूरी दुनिया में, आखिर जब बाहर निकलते तो हर तरह के लोग हमें देखते हैं। हमारा जो हुलिया होता है, आप देखें, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो यूनिफॉर्म हमें दिया है, हम वो नहीं पहनते तो हम डेफिनेटली, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि ये मैक्सिकन लग रहे हैं, या ईरानी कह देंगे, या कोई भी ऐसी चीज कह देंगे, हमारी शक्लो सूरत से जो भी उनको लगता है वो वैसे करेंगे। लेकिन अगर जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो यूनिफॉर्म पहन के बाहर निकलते हैं तो दूर से लोग कह देते हैं ये अल्लाह वाला बंदा जा रहा है। अब उस बंदे पे फिर मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आपके यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग हैं, उनके अमल भी ऐसे कर दे कि कहीं हम शर्मिंदगी वाले की बात ना बन जाए कि अल्लाह वाले लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ये कितना बड़ा खूबसूरत दावा है। और उस बच्ची की बात मुझे इतनी प्यारी लगी जिसकी हद नहीं, और इतनी इंकरेजमेंट मिली कि वाकई कि आप जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बाहर निकलते हैं तो कितनी बुराइयों से आप बच जाते हैं, और फिर अल्लाह की रहमतें कितनी आप पे नासिल होती हैं कि आप तो चलता फिरता दावा वतवस्सौ बिल हक़ वतवस्सौ बिस सब्र, तो कुछ ना कहते हुए भी आप वतवस्सौ में आ जाते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ईमान लाए रसूल, उस पर जो नाजिल किया गया था उसकी तरफ, उसके रब की तरफ से।